શબ્દો જો બહુ ક્લિયર. ભાવ નિશ્ચય અને વિશુદ્ધ ભાવ, એ લોકોના ભાવોમાં શું છે કે આપણે આમનું આમ જ રહેવું છે. આ વસ્તુને બદલાવ, સત્યને બહાર લાવવા જ નથી. આજનું નહીં, કેટલા વર્ષોથી એ લોકોના ગુરુએ પોતાના ચેલાઓને ચૂપ જ કર્યા છે કે નહીં બોલ? અત્યારે એવું જ છે ને, બિચારું કોઈ સારું લાવવા જાય છે તો એને પણ લાવવા નથી દેવું. એટલે જે સમય છે અત્યારના કે આ સંશ્લેષ પરિણામો, તો સંશ્લેષ પરિણામોનું કારણ શું છે એ તો વિચાર. આત્મ પરિણામ સંશ્લેષ વાળા હોય ત્યારે જ આ વસ્તુ બને. તમારે શુભ હોય તો એમ જ વિચારે ને કોઈ બી કે ભાઈ ના લાવો ને, આપણે ધર્મ ને બહાર લાવો. તમે શું વિચારો? આજે તે પેજ મૂક્યું છે એમાં શું લખ્યું છે બોલ? શું લખ્યું છે કે? મેં આખું વાંચ્યું, એમાં એ જ લખ્યું છે ને કે આજની પેઢીને તો આ સત્ય શું છે એ બહાર નહીં આવે, એ નથી ચાલવાનું આજની પેઢી માટે. આજની પેઢી સત્ય માંગવાની જ છે તમારી પાસે. हाँ, अगर जैन धर्म साइंटिफिक है तो लाओ बाहर. आपको उसका साइंस ही बाहर नहीं लाना है तो क्या फायदा बोलो? और वही बोलो कि पृथ्वी जमीन पे नहीं है, पृथ्वी फ्लैट है, બધું ખોટું છે. પૃથ્વી થાળી જેવી છે, ખોટું છે. પૃથ્વી સપાટ છે, ખોટું છે. હા હા, તો ભાઈ તો એ તો મોકલશે. હવે જો એમને પણ શું કર્યું, શું છે, અડધું રાખીને પૃથ્વીને હવામાં રાખીને અડધું ઓલું માનીને પણ અહીંયા વધી રહ્યા છે ને આગળ. એ અડધું માનીને પણ સાયન્સ ને સાચું કહી રહ્યા છે, રાઈટ? એ પાછા આગમને સાચું નથી કહી રહ્યા. આજ શું રહી ગયું? હા, પણ એટલે એ લોકો આજના લખાણમાં એ વસ્તુ આવી ગઈ કે નહીં? એ લોકો તો પૃથ્વીને હવામાં સાચી માની લીધી છે કે નહીં? એ તો સાંભળશે એટલે ખ્યાલ આવશે. એ લોકો સરવાળો તો એમ કરીને પણ આગમને જ એ લોકો અધૂરા તો માની જ રહ્યા છે ને. આગમ આના પ્રમાણે છે, પૃથ્વી આ પ્રમાણે છે, એવું તો એ લોકો એમ સમજીને પણ તો નથી જ માની રહ્યા. સાયન્સ ને સાચું માની જ રહ્યા છે ને. પછી શું શ્રાવકોનું તો એ ખબર નથી હવે ક્યારે છે, શું છે જોઈએ. હા, એ તો હવે બીજો તો રસ્તો જ નથી આપણી પાસે. એકવાર સચ્ચાઈ તો જાણો એમ કે આટલું મને ગમે ત્યાં બોલાવે કે હું જવા તૈયાર છું. એ રીતનું કઈક જોઈએ હવે શું કરવું છે. કઈક શાંતિથી કરવું પડે અને આ મારા સાહેબને તકલીફ ના પડે ને એવું બી કરવું પડે આપણે. શું એમનું નામ જ વચ્ચે નહીં લાવવાનું હવે. તમારે મારા નામે જ બહાર લાવવાનું છે, બીજું કઈ કરવાનું નથી. ના, એટલે હવે હું એવું વિચારું છું કે સૌથી પહેલા વેબસાઇટ નું જ વિચારવાનું, બાકી બધું પછી. અને 5760 વર્ષની વેબસાઇટ જવી જોઈએ, થોડી નહીં. ના ના, એ નાસાનું તો પછી, હમણાં પહેલા આનું વેબસાઇટ તો બનવા દો, પછી આપણે આગળ મોકલાવાય ને. વેબસાઇટની લિંક હજી આ લોકો કઈ પૂરી કરી નથી. હવે પાછા એકવાર કરે, એકવાર ન કરે, આગળથી કરવા ના દે, બધું જ વિચારવું પડશે. હા, એ તો છે. મારું તો ગૂગલ શીટ તો મારી પાસે છે જ. એમાં કોઈ ચિંતા નથી. મારી પાસે તો આજે બી મારા કમ્પ્યુટરમાં છે, પેનડ્રાઈવમાં છે. આપણે કરીશું તો આપણે અલગથી ગૂગલ સાઇટ કરશું, એની કોઈ ચિંતા નથી. ના ના, આ નાના મહાત્મા તો નાના તો મહાત્મા તો બી કરશે, તું જોજે. કારણ કે એ કઈ
વસ્તુથી દબાઈને બેસે એવો એનો સ્વભાવ જ નથી. તું સમજ મારી વાત. એટલે એ તો હવે જુઓ ને આગળ શું થાય છે. કોઈ ઊભું થશે તો જ આમાં કઈ થશે કે શાંત પાણીમાં કોકને તો પથરો નાખવો પડશે. સમજી? કઈ નઈ જોશું હવે શું થાય છે. જોશું, સમય જવા દે પછી જોશું. ચાલો લઉં આગળ. ના કોઈ નહીં, ના કોઈ આવી નથી. જવું તો રેવા દે, કાલ વાત. થોડુંક લઈ લઉં 15 મિનિટ. हाँ 15-20 मिनट ले लो. चार शतक 13वां उद्देश्य दूसरा. इस उद्देश्य में चारों जाति में देवों की उत्पत्ति. देखिए नारकी का हो गया है, अब देवों की बात की है. देवों की उत्पत्ति, उनका उद्वर्तन, उनकी विद्यमानता के ऊपर उसके विषयक प्रश्नोत्तर और अंत में लेश्या परिणमन. देखिए लेश्या परिणमन हर एक में आएगा. लेश्या बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे ही संक्लिष्ट भाव अशुभ लेश्या बनाएंगे, आत्म परिणति अपने आप अशुभ हो जाएगी. और हमारे ही विशुद्ध भाव आत्म परिणति को शुद्ध बनाएंगे तो लेश्या अपने आप शुभ हो जाएगी. मनुष्य और तिर्यंज गति के जीव ही देव गति में जा सकते हैं. देखिए ये खास इंपॉर्टेंट बात. देव में कौन जाएगा? या मनुष्य देव बनेगा या तिर्यंज देव बनेगा. ना देव में से देव होगा ना नरक में से देव होगा. बराबर? क्योंकि तथा प्रकार के स्वभाव से ही नरक का जीव नरक में गया है. उसने यहाँ पे पीड़ा भोगी है, उसने पीड़ा पाप कम किए हैं लेकिन पुण्य बांधा नहीं है. इसलिए वो तथा स्वभाव से ही पुण्य का बंध नहीं कर पाया, इसलिए वो सीधा देव में जाएगा नहीं. और देव मरी ने भी देव में नहीं जाएगा क्योंकि देव गति में रहकर उसने कोई नया पुण्य तो बांधा ही नहीं. वो खाली पुण्य खर्च करके आया. इसीलिए देव गति से भी जीव देव में वापस नहीं जाएगा. तो मनुष्य और तिर्यंश में ही ये विशुद्ध भाव पैदा होंगे और वो भाव उत्पन्न होने के कारण वो देव गति में जा सकते हैं, मनुष्य और तिर्यंश ही. तो उसके लिए 39 बोल 39 बोल यहाँ बताए गए हैं. वो नाम मैं बोल रही हूँ. उपपात, फिर परिमाण, फिर लेश्या, उसके बाद पक्ष, चारों संज्ञा, फिर संज्ञी असंज्ञी, भव्य अभव्य, ज्ञान, 3 प्रकार के तीनों ज्ञान, तीनों अज्ञान, तीनों दर्शन, तीनों वेद, चारों कषाय, पांचों इंद्रिय और 9 इंद्रिय भी, छठा 9 इंद्रिय और 3 प्रकार के योग और 2 प्रकार के उपयोग. तो कुल 39 बोल को हम ध्यान में लेंगे. कितने? 39. उसके बाद भवनपति के भवनों का विस्तार. जघन्य जम्बूद्वीप प्रमाण, कम से कम जम्बूद्वीप प्रमाण है भवनपति के विस्तार. और उत्कृष्ट मध्यम में असंख्यात योजन और उत्कृष्ट तो असंख्यात योजन. बराबर? उसके आवास भी संख्यात और असंख्यात होते हैं. अब व्यंतर की बात की है. नीचे व्यंतर रहते हैं जो तिर्यक लोक के नीचे, तो उनका भी नगरों का विस्तार जघन्य भरत क्षेत्र जितना. बराबर? भवनपति के भवन जघन्य जम्बूद्वीप जितना और व्यंतर का आवास जघन्य भरत क्षेत्र जितना. मध्यम में वो महाविदय जितना और उत्कृष्ट में जम्बूद्वीप जितना. इससे ज्यादा नहीं भवनपति के आवास. उसी के अंदर उनके संख्या असंख्यात आवास और संख्यात योजन. अब ज्योतिषी देवों के विमान की बात की. देखिए भवनपति हो गए, व्यंतर हो गए, व्यंतरवाण व्यंतर. अब आए ज्योतिष्क देव, तीसरा देवों का तीसरा विभाग. ज्योतिषी देवों के विमान असंख्यात होते हैं और वो
1 योजन में थोड़ा कम, बस उतने विस्तृत है। कोई भी ज्योतिष देव का विमान 1 योजन से ऊपर नहीं जा रहा है, 1 योजन से कम ही हो रहा है। वैमानिक देवों के विमान में सर्वार्थ सिद्ध विमान की बात की। अब वैमानिक देवों की बात, 12 देवलोक और 5 अनुत्तर, 9 ग्रह, एक सब। तो सबसे बड़ा है सर्वासी सबसे ऊपर है वो संख्यात योजन, और बाकी सारे असंख्यात योजन। सर्वासी एक ही है जो संख्यात योजन में, बाकी सारे देवलोक, सर्व देवलोक असंख्यात योजन विस्तृत है। उसके विमान आवास भी संख्यात और असंख्यात योजन विस्तृत, बराबर। अब उनकी उत्पत्ति कही गई है, तो भवनपति, व्यंतर, ज्योतिषी, 1 से 8 देवलोक तक एक समय में, और वैमानिक चौथा, 1 से 8 देवलोक तक वैमानिक। उसमें एक समय में जगन्य 1 देव, या तो 2 देव या 3 देव मध्यम में, और उत्कृष्ट से असंख्यात अथवा संख्यात देवों की उत्पत्ति या तो असंख्यात भी होगी, कभी कभी संख्यात भी होगी, बराबर। 9वें देवलोक से लेकर सर्वासिद्ध विमान तक, देखिए 9 देवलोक तक की बात की है। 9 देवलोक तक असंख्यात देव भी उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि ये 9 देवलोक तक बहुत ज्यादा देव उत्पन्न होते हैं। देवो ही असंख्यात है, पर 9, 10, 11, 12, उसके बाद ग्रीवेयक, उसके बाद अनुत्तर, तो 5वें अनुत्तर विमान सर्वासिद्ध तक, 9 से लेके सर्वासिद्ध तक उत्कृष्ट संख्याता देव ही उत्पन्न होते, गिनती के उत्पन्न होते, वहां ज्यादा नहीं है, वहां असंख्यात का आंकड़ा ही नहीं, क्योंकि गर्भज मनुष्य ही वहां उत्पन्न होते हैं। देखो ये आपको एक नई बात मिली, 9 देवलोक से लेकर अनुत्तर विमान तक गर्भज मनुष्य जाएंगे। कौन जाएंगे? गर्भज मनुष्य का ही जन्म हो सकता है, 9, 10, 11, 12 देवलोक और उसके ऊपर के विमानों में, बराबर। हाँ, गर्भज मनुष्य ही जा सकते हैं बस। ठीक है, ना ना ना, મનુષ્ય ગર્ભજ થયું છે, સિમ્પલ તો થાય જ છે ને। અરે મનુષ્ય એટલે ગર્ભજ એ જુદા જ ને પાછા, ગર્ભજ મનુષ્ય, હા ફરક। चल आगे। भवनपति व्यंतर में 4 लेश्या, भवनपति में भी 4 लेश्या और व्यंतर में भी 4 लेश्या। देखो अभी आप जैसे नारकी की लेश्या करी ना, ऐसे यहाँ की लेश्या करनी। भवनपति में 4 लेश्या, नीचे की 4, बराबर। कृष्ण, नील, कापोत और तेजो लेश्या। उसके बाद व्यंतर में कितनी? वो भी 4 ही, कृष्ण, नील, कापोत और तेजो। यहाँ शुभ लेश्या नहीं आई, शुक्ल पद्म नहीं आई, पद्म शुक्ल, बराबर। ज्योतिष और पहले 2 देवलोक में तेजो लेश्या। देखो ज्योतिष के देव में तेजो लेश्या है, क्योंकि प्रकाशी है ना, उनके विमान प्रकाशित है, बराबर। और पहले 2 सौधर्म ईशान, उसमें भी तेजो लेश्या।
तीसरे, चौथे, पांचवें देवलोक में पद्मलेशिया। तीजे, चौथे और पांचवे ब्रह्म देवलोक तक पद्मलेशिया, मतलब ये थोड़े शुभ हुए। और उसके बाद देवलोक में शुक्ल लेशिया वाले, छह से लेकर ऊपर तक शुक्ल लेशिया वाले। देखिए अब यहाँ पे एक ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा। आज तक हम लोग यही समझते थे कि शुक्ल लेशिया वाले जीव मतलब कि उसी भू में जो मोक्ष जा रहे हैं वो, बराबर। बोलो, समझ रहे थे कि नहीं? हाँ, 5 अनुत्तर विमान को छोड़कर शेष स्थान में कृष्ण पक्षी शुक्ल पक्षी दोनों प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। देखो, 5 अनुत्तर विमान छोड़ दो, बाकी 9 ग्रह एक तक शुक्ल पक्षी कृष्ण पक्षी दोनों जीव उत्पन्न होते हैं। शुक्ल पक्षी यानी कि अब जिनका आधा ही उद्गल परावर्त काल बाकी रहा है, और कृष्ण पक्षी यानी कि पाक्षी यानी कि अभी जिनको बहुत लंबे समय तक भटकना है। तो जिनको लंबे समय तक भटकना है वो ऊपर के अनुत्तर और सर्वासिद्ध में नहीं जाएंगे, बराबर। पांचों अनुत्तर में नहीं जा सकते। और पांचों अनुत्तर में वो ही जा सकते हैं जिनको अब आधे पुद्गल परावर्तन से कम समय बाकी है, बराबर। तो 5 अनुत्तर विमान में एकांत से शुक्ल पक्षी ही जीव उत्पन्न होंगे। असंगी जीव भवनपति और व्यंतर में ही उत्पन्न होंगे। असंगी जीव, असंगी मनुष्य, समूची मनुष्य असंगी होते हैं, बराबर। तो ये सारे मरने के बाद, अच्छा, गर्भ काल बांधे बगैर भी तो मरते, वो भी असंगी है कि नहीं? देख, तू पूछ रही थी ना मनुष्य असंगी કેવી રીતે હોય, સાંભળ। એક સમયના અબ્રહ્મ સેવનમાં 9 લાખ પંચેન્દ્રિય જીવ હોય છે, બરાબર। તો એમાં સંઘની શરીર કોને મળ્યું? ગર્ભ કોનું બંધાયું? એક જીવનું ને? એક કે બે ત્રણ, અને બાકીના બધા બધા મનુષ્ય બનવાના હતા, ગર્ભ જ બનવાની તાકાત બધામાં છે। તો હવે એ બધા અસંગની થયા કે નહીં? કેવા મર્યા બોલ, સંગની કે અસંગની? સંઘની ક્યાંથી કહેવાય? હજી સંઘના પંચેન્દ્રિય બન્યા? સંઘની પંચેન્દ્રિય બનતા બનતા રહી ગયા એટલે અસંગની પંચેન્દ્રિય થયા કે નહીં? જો જે જીવ ગર્ભમાં 48 મિનિટ સુધી પોતાની પર્યાપ્તિ નથી બાંધતો એ પણ અસંગની પંચેન્દ્રિય છે? કારણ કે પર્યાપ્તિ બાંધશે, 6 પર્યાપ્તિ બાંધશે પછી જ સંજ્ઞા બુદ્ધિ આવશે ને। એ સંજ્ઞી ક્યારે બનશે બોલ? છ પર્યાપ્તિ બાંધ્યા પહેલા કે પછી? બાંધ્યા પછી સંજ્ઞી બનશે। તો જે જીવ અબ્રહ્મના સેવન વખતે 9 લાખ પંચેન્દ્રિય મરી ગયા એ બધા જ અસંગીપણામાં મર્યા? એ અસંગની ગર્ભ જ મનુષ્ય કહેવાય, અસંગની મનુષ્ય। સમજાયું હવે? અસંગની ગર્ભ જ થયા કારણ કે ગર્ભ બંધાતા પહેલા જ એનું મૃત્યુ થયું છે, बराबर। तो असंगनी जीवो भवनपति और व्यंतर में ही उत्पन्न होते हैं। अब ये असंगनी मरकर कहाँ जाएंगे? भवनपति और व्यंतर में। कहाँ जाएंगे? और उत्पत्ति के समय वो असंगनी होते हैं।
बाकी के स्थान में असंगनी जीव उत्पन्न नहीं होते, इसीलिए उस स्थान में उत्पत्ति के समय संगनी ही होते हैं। अभवी जीव, तीन अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि और अचरम जीव अनुत्तर विमान में नहीं जा सकते। अभवी जीव अनुत्तर में नहीं जा सकते, बराबर। तीनों अज्ञान वाले भी नहीं जा सकते, मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, विभंगज्ञानी भी नहीं जा सकते, मतलब मिथ्यात्वी भी अनुत्तर में नहीं जा सकते। मिथ्या दृष्टि तो अपने आप हो गया, तीन तीन अज्ञान वाले मतलब मिथ्यात्वी। અને અચરમ જીવ, અચરમ જીવ કે જે પેલી ચરમ અવસ્થામાં આવ્યા જ નથી. ચરમ અવસ્થા એટલે શું? તો કે હવે એનો અર્ધ પૂતગલ અંતિમ સમય ચાલી રહ્યો છે, તો એ પણ જવાનું નથી ત્યાં સર્વાત સિદ્ધમાં, પાંચ અનુત્તરમાં. અચરમ જાય નહીં. ચરમાવર્ત એટલે શું? તો કે અંતિમ અર્ધ પૂતગલમાં પ્રવેશ. ચરમ આવર્ત, બસ. તો પછી ચરમ આવર્ત વાળાને હવે પર બે ભવે બાકી હોય, ત્રણ ભવે બાકી હોય, એક ભવે બાકી હોય, રાઈટ? તો પછી એ ક્યાંથી અનુત્તરમાં જાય? બોલો. અનુત્તરમાં જવા વાળાને એક, બે, ત્રણ થી વધારે ભાવ બાકી નથી. बराबर. चलो, देवलोक में नपुंसक वेद नहीं है. तिर्यक सारे नपुंसक, पर देवलोक में नपुंसक वेद नहीं है. या तो पुरुष वेद है या स्त्री वेद है, बराबर. भवनपति, व्यंतर, ज्योतिषी और पहले देव देवलोक में स्त्री वेदी और पुरुष वेदी दोनों जीव है. भवनपति में, ज्योतिषी में, व्यंतर में और भवनपति निकाय, व्यंतर निकाय, ज्योतिषी निकाय और पहले दो देवलोक में स्त्री देवी है, मतलब देवियां है. पुरुष देव तो देव भी है, देवियां भी है. भवनपति में भी देवियां, व्यंतर में भी देवियां, वाण व्यंतर में भी देवियां, और पहले दो देवलोक तक ही देवी है, उसके बाद नहीं है. सर्वार्थ सिद्ध विमान तक, तीसरे देव से लेकर सर्वार्थ सिद्ध तक मात्र देव है, पुरुष, खाली पुरुष वेद. चक्षु दर्शन, पांच इंद्रिय, मनोयोग, वचन योग सहित कोई भी जीव किसी भी स्थान में उत्पन्न नहीं होते. फिर से चक्षु दर्शन, पांच इंद्रिय, मनोयोग और वचन योग सहित कोई भी जीव की देवलोक में किसी भी स्थान में उत्पत्ति नहीं. मतलब क्या है? देवलोक में चक्षु दर्शन ही नहीं है, आंखों से देख सके ऐसे. पांच इंद्रिय वाला नहीं है, मनोयोग वाला नहीं है और वचन योग वाला नहीं है. जो आगे किया वही बात. आओ, पर्याप्त अवस्था प्रायोग्य बोल होते हैं, उसको छोड़कर शेष बोल सहित जीवों की उत्पत्ति यहाँ होती है. अब उद्वर्तना, अब देवलोक से कौन कौन से जीव बाहर निकल सकते हैं? तो देवलोक में से निकलकर देव जीव कहाँ जन्म लेंगे? तो या तो मनुष्य में जाएंगे या तिर्यंश में जाएंगे, दो ही है, बराबर. ना वो देव बनेंगे, ना नरक बनेंगे, ना मोक्ष होगा, तो खाली दो गति में, या मनुष्य में जाएंगे या तिर्यंश में जाएंगे. तो देव में से निकलते हुए जीव में दो गति योग्य भाव होते हैं, जिसमें उत्पत्ति और मरण के समय
देवों में समान लेशिया होती है। अब देव मरेंगे या उत्पन्न होंगे तो एक समान लेशिया होगी। भवनपति, व्यंतर, ज्योतिषी और 8 देवलोक के देवों में एक समय में उत्कृष्ट से असंख्याता जीव जाते हैं, बाहर निकलते हैं। भवनपति से, व्यंतर गति से, निकाय से, ज्योतिष निकाय से और पहले 8 देवलोक से जीव उद्वर्तना के समय, मतलब देवलोक छोड़ने के समय असंख्याता जीव निकलते एक समय में। और 9 में देख लो, सर्वासिक तक संख्याता जीव निकलते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, 5 अनुत्तर में 9 में देवलोक से लेकर सर्वासिक तक मनुष्य में ही जाएंगे। ये भी बहुत अच्छी बात जानी। पहले 4 देवलोक के जीव तिर्यंस और मनुष्य दोनों में जा सकते, पहले 4 देवलोक के। समझ में આવ્યું? हाँ, पहले 4 देवलोक के जीव पहले 8 देवलोक तक, पहले 8 देवलोक तक के जीव मनुष्य में भी जा सकते, तिर्यंस में भी जा सकते, लेकिन 9, 10, 11, 12 वो 4 देवलोक, 5 अनुत्तर, वहां से लेकर सर्वासित तक, उसमें से जन्मे हुए जीव गर्भज मनुष्य में ही जाते हैं। बराबर, इसलिए संख्याता निकलेंगे, संख्याता ही जाएंगे। भवनपति, व्यंतर, ज्योतिषी, ये 3 में से जो भी देव में से जीव निकलेगा वो तीर्थंकर कभी नहीं बनते। ये याद रखो, बहुत महत्व की बात। ज्योतिषी, भवनपति और व्यंतर जाति में से बाहर निकले हुए जीव कभी तीर्थंकर नहीं होते। मतलब तीर्थंकर के जीव नहीं भवनपति में जाएंगे, नहीं ज्योतिषी में जाएंगे, नहीं व्यंतर में जाएंगे। मतलब ये हो गया ना, तीनों निकाय अशुभ लेशा वाली है, बोलो सम्यक दर्शनी की नहीं है। बराबर, क्योंकि यहाँ से जो जीव निकलते हैं ना ही उनको बाहर निकलने के समय अवधि ज्ञान भी नहीं है, अवधि दर्शन भी नहीं है। वैमानिक जाति से बाहर निकले हुए जीव को अवधि दर्शन होता है, क्योंकि वैमानिक देव में से निकले हुए तीर्थंकर आदि के जीव अन्य भी विशिष्ट कोटि के जीव मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं। बराबर, वो जीव अल्पसंख्यक ही होते हैं, इसीलिए किसी भी स्थान से संख्याता जीव ही अवधि दर्शन लेकर बाहर निकलते हैं। और कोई भी देव को मृत्यु के समय विभंग ज्ञान नहीं होता। बराबर, वो विभंग ज्ञान नहीं कर सकते, वो देख नहीं सकते कुछ एरिया तक मृत्यु के समय। भवनपति, व्यंतर, ज्योतिषी और पहले 2 देवलोक जहां पर अशुभ लेशा है, वो लोग देवलोक में से निकलने के बाद, मरने के बाद पृथ्वी काय, अप काय, वनस्पति काय में ही उत्पन्न होते हैं। उसमें भी, नहीं ही मैं नहीं बोलूंगी, उसमें भी। बराबर, पृथ्वी अप में, वनस्पति में और तिर्यंश में। इसलिए उन देवों को ऊर्ध्वतना के समय संगनी असंगनी दोनों प्रकार होता है। उसके अलावा सर्व देव संगनी ही होते हैं। देव गति में से मरने के बाद जीव तीनों वेद में उत्पन्न हो सकते, स्त्री वेदी, पुरुष वेदी और नपुंसक वेदी। बराबर, आओ थोड़ा ही है, खत्म कर लेते हो, फिर कल इसको वापस डिटेल से करेंगे। विद्यमानता, उत्पत्ति और मरण के सिवाय के समय में स्थानगत देवों का भी ये 39 प्रश्नों से ही निराकरण किया गया है, और वो हम डिटेल से आगे करेंगे।
देव भाव में देव के रूप में रहने वाले जीवों में सर्व भाव देव गति के अनुसार ही होता है। प्रत्येक जाति के देव स्वस्थान में संख्याता और स्थान के अनुसार उनकी लेशिया 5 अनुत्तर विमान में कृष्ण पक्षी अभव्य 3 अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि जीव नहीं जाते 5 अनुत्तर में। उसके उपरांत सर्वार्थ सिद्ध के चरम जीव भी अचरम जीव भी नहीं जाते सर्वार्थ। बाकी सब जगह से आपको अचरम जीव मिलेंगे। देवगति के जीव असंगनी नहीं होते हैं, परंतु असंगनी जीव भवनपति और व्यंतर में जरूर उत्पन्न होते हैं। इसलिए उनके अपर्याप्त अवस्था में वो असंगनी होते हैं, लेकिन बाद में उनको संज्ञा मिल जाती है। भवनपति, व्यंतर, ज्योतिषी और प्रथम 2 देवलोक में स्त्री वेद और पुरुष वेद दोनों होते हैं, और उसके ऊपर मात्र पुरुष वेद। देवलोक में लोभ कषाय की प्रधानता है। लोभ कषाय के कारण ही देव बनते हैं। जितना ज्यादा लोभ करेंगे उतना देव बनेंगे। पैसे इकट्ठे करो, धन इकट्ठे करो, दागिना इकट्ठे करो, तो ये लोभ हो गया। घर इकट्ठे करो, गाड़ियां इकट्ठी करो, ये लोभ है। बराबर। जैसे ही कषाय कम हो गया, आप देव में भी नहीं जाओगे, मात्र मनुष्य बनोगे, ये याद रखना। तिर्यक्ष में भी नहीं जाओगे। लोभ कषाय शाश्वत देवलोक में माना गया। नो इंद्रियोपयुक्त अनंतर पन्नक, अनंतर अवघाड़, अनंतर आहारक, अनंतर पर्याप्तक जीव अशाश्वत होते हैं। इस कारण से उत्पत्ति के समय में ही ये सब होता है, बाद में नहीं। वीर काल की अपेक्षा से ये सबका यहाँ अभाव मिलेगा। लेशिया का परिणमन, कोई भी लेशिया वाला जीव संक्लिष्ट अथवा विशुद्ध परिणाम, दोनों परिणामों को प्राप्त होते ही उसकी लेशिया में परिवर्तन होता है। देखो, यही हम पहले जानेंगे, आज बहुत अच्छे से जाना। अगर आपको संक्लिष्ट परिणाम हुआ तो आपकी लेशिया में परिवर्तन होकर आप अशुभ लेशी बन जाओगे, और अगर आपको विशुद्ध परिणमन हुआ तो आप अपनी लेशिया में परिवर्तन लाकर शुद्ध बना दोगे। इसीलिए मृत्यु के समय के जीव उत्पत्ति के स्थान के योग्य लेशिया के परिणमन को ही प्राप्त करेगा, और उस परिणमन की अवस्था के अनुसार ही उसको गति मिलेगी। तो इस तरह उत्पन्न होते, मरण पाकर बाहर निकलते स्थानगत जीवों की वृद्धि के भावों को ये बताया गया है, और ये हम कल से शुरू करेंगे। अब होगा कल उद्देशक दूसरा, शतक 13। अच्छा, जय दिल। हाँ, ये आज अभी जो चीज जानी ना, वो पूरी कल डिटेल से करी। हाँ, અને કાલે જેમ લેવાશે એમ લઈશ. કાલે આમ બી ઓલું છે ને, દશેરો છે ને. હા હા, એટલે આ લોકોને તો રજા હશે. બપોરે તો આમ તો જો કે મળવો જ જોઈએ મને ટાઈમ, એટલે હું ના તો પાડતી જ નથી. બરાબર. હા, ખોટું આપણું ના. પરમ દિવસે કદાચ. હા હા, જય જી. અને પરમ